دوبارہ لاک ڈاؤن خارج امکان قرار، پاکستان مزید لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر فورس ٹڈی دل کے خلاف انتظامیہ کی مدد اور کلین گرین مہم کا حصہ بنے گی۔ مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے متعلق معلومات کے علاوہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت بجٹ اجلاس، مشیر خزانہ کی قیادت میں حکومتی معاشی ٹیم کی بریفنگ۔ کورونا کے باعث ہر طبقہ متاثر ہوا ہے، موجودہ معاشی حالات کے پیش نظر اصلاحات کے عمل کو تیز کیا جائے، آئندہ بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ وزیر اعظم سینٹ میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے مسلمانوں پر ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مذمتی قرارداد متفقہ منظور۔ اقوام متحدہ سے مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ تنازع کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری، سید علی گیلانی کی ساری زندگی کشمیری عوام اور آزادی پسند قیادت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کا مجلس شورا کے اجلاس میں پارٹی چیئرمین سید علی گیلانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزادی کشمیر کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ملک میں کرونا وائرس سے اموات اور کیسز میں تیزی سے اضافہ، ایک ہی دن میں ریکارڈ 4,896 نئے کیسز کی تصدیق، مجموعی تعداد 89,249 ہو گئی، 68 افراد جان کی بازی ہار گئے، 31,200 صحت یاب۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $50 لاکھ ہنگامی امداد کے علاوہ $3 کروڑ مزید فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں معاہدوں پر دستخط، رقم انسداد کورونا، صحت کی خدمات میں بہتری، حفاظتی آلات اور احساس پروگرام میں استعمال ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کرونا وائرس کے عدم پھیلاؤ اور آگاہی کے فروغ میں سرگرم عمل، عوام کی صحت سے متعلق مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک نگہبان موبائل ایپ کا اجرا۔ ٹڈی دل پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری، کسانوں کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہیں، چین سے اسپرے کرنے والے ڈرون درآمد کریں گے، وفاقی وزیر سید فخر امام کی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا فضائی دورہ، ٹڈی دل کی صورتحال اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ، ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے جائیں، سردار عثمان بزدار۔ سینتالیس متاثرہ اضلاع میں ٹڈی دل کے خلاف بھرپور آپریشن، 2.5 کروڑ ہیکٹر رقبے پر سروے، 5,15,600 ہیکٹر رقبے پر کنٹرول آپریشن۔
دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 67,50,000 سے تجاوز کر گئی. 4 لاکھ کے قریب مریض جان کی بازی ہار گئے. 32,80,000 صحت یاب. امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی آخری رسومات ادا. سیاستدانوں، سماجی کارکنوں سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت. امریکہ اور برطانیہ میں ہزاروں افراد کا احتجاج. سیاہ فام شہریوں کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کا مطالبہ. پاکستان کرکٹ بورڈ کا سیزن 2020-21 کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان. انم امین، امائمہ سہیل سمیت 9 خواتین کرکٹر شامل. بسمہ معروف، جویریہ خان اور ڈیانا بیگ کی سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی. پی سی بی کا معاوضوں میں بھی اضافے کا اعلان. عمر اکمل سزا کے سپریم کورٹ کے سابق جج 11 جون کو کیس کی سماعت کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے بطور آزاد منصف فریقین پی سی بی اور عمر اکمل کو نوٹسز جاری کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے میں کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں نازیہ کمل. اور کھیل خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس. لیکن فی الوقت کچھ اہم خبروں کے لیے آپ کے لیے چلتے ہیں منڈس کے طرف. بلیٹن کا آغاز کریں گے. خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. صرف اتنا کرنا ہے، کہیں باہر جانا ہو تو ماسک پہننا ہے. معیشت اور صحت دونوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے. علامات کی صورت میں مفت ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کرنا ہے. آپ کی خیر خواہ حکومت خیبر پختونخوا. کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زونگ 4G. کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر ملک میں فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے اور مقامی تجارت کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے کووڈ-19 اسمگلنگ کی روک تھام آرڈیننس 2020 کے تحت تمام شیڈیولڈ اشیاء کی ملک سے باہر اسمگلنگ پر مکمل پابندی. FBI کی جانب سے شیڈیولڈ اشیاء کی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اختیارات میں اضافہ. مقدمات پر کارروائی کی مدت 1 ماہ مقرر. مجرموں کو 10 سال تک سزا اور ممنوع اشیاء کی ضبطی. اسمگلنگ کی اطلاع دینے والوں کو 10% انسینٹو. آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیں. اسمگلنگ کے خلاف ملک کا ساتھ دیں. FBI. وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے بھرپور اور مؤثر آپریشن کر رہی ہیں. تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں کہ ٹڈی دل کے حملے کی اطلاع پر تمام دستیاب مشینری کو متحرک کر کے بر وقت ٹڈی دل کو طلب کریں. کاشتکار حضرات سے گزارش ہے کہ ٹڈی دل کے حملے کی صورت میں حکومتی ٹیموں کے پہنچنے تک روایتی طریقوں سے ٹڈی کو فصلوں اور باغات سے دور بھگائیں. ٹڈی دل کے حملے سے قبل اپنی فصلوں کے ارد گرد احتیاطی طور پر پروفینوفاس کا اسپرے کریں. اجتماعی طور پر بھی متاثرہ علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر اور بڑے اسپریئرز تیار رکھیں اور ٹڈی کے حملے کی صورت میں لمڈا کا اسپرے کریں. بالغ ٹڈی کے حملے کے بعد بلا تاخیر متاثرہ زمین میں ہل چلا کر ہر صورت انڈے تلف کریں. غیر آباد اور صحرائی علاقوں میں ٹڈی دل کا غیر معمولی جھنڈ دیکھنے پر ہوائی اسپرے کے لیے NLCC سے فوراً رابطہ کریں. ٹڈی دل کی موجودگی کی اطلاع دینے یا متعلقہ معلومات کے حصول کے لیے NLCC کے ہیلپ لائن نمبرز پر رابطہ کریں. صرف اتنا کرنا ہے، ہاتھوں کو صابن سے دھو کر صاف رکھنا ہے. علامات کی صورت میں مفت ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کرنا ہے. آپ کی خیر خواہ حکومت خیبر پختونخوا.
वेलकम बैक। पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की। वजीर आजम इमरान खान ने दोबारा लॉकडाउन को खारिज अज इम्कान करार दे दिया है। कोरोना टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क अब मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। कारोबार बंद करने से टैक्स मुहासिल में 800 अरब रुपए की कमी हुई है। तफसील बताएंगे रियाज बरकी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका भी गैर मुय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता और वहाँ लोग कतारों में खड़े होकर खाना वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पहले ही मुश्किल मौशी सूरत हाल का सामना था, ऐसी सूरत में मजीद लॉकडाउन की गुंजाइश नहीं है। ये मुल्क अब लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमें अब तक 800 अरब रुपए का हमारा जो टैक्स है उसके अंदर कमी आई। जब हमारी हुकूमत आई तो पहले साल में जितना हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया था उसका आधा कर्जों की किस्तें अदा करने में चला गया। 5000 अरब रुपया अब तक हम दे चुके हैं पिछले हुकूमतों की कर्जे लिए हुए उनके सूद देने पे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुसलमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ रमजान के दौरान तरावी की इजाजत दी गई। उलमा ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और मसाजिद से कोरोना के फैलाव का कोई वाकया सामने नहीं आया। SOPs के ऊपर अभी भी लोग अमल करना शुरू करें तो मेरा पूरा यकीन है कि हम मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे जो कई दुनिया के अंदर मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर मुल्क है, उधर एक दिन के अंदर 1350 लोगों की अमवात हुई। अमेरिका में 2000 से ज्यादा लोगों की दिन में फौतगियां हुई। तो शुरू से जो हमने कदम उठाए अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे बच गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वबा से निपटने के लिए रजाकारों की मदद ली गई, मगर पाकिस्तान के 10 लाख रजाकारों की तादाद सबसे ज्यादा है। हम आपको बाकायदगी से जो हमारी CCOP जो हर रोज हम बैठ के सारे मुल्क का जायजा लेते हैं, हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, किधर ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वायरस किधर फैल रही है, तो हम आपको वहाँ गाइड भी करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें हॉटस्पॉट्स को बंद करना पड़े और अगर जब बंद करते हैं तो फिर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी आपकी कंट्रीब्यूशन ये इस मुश्किल वक्त में होगी कि आप लोगों में शऊर पैदा करें, और अगर आप कामयाब हो जाते हैं शऊर पैदा करने में तो उससे होगा क्या, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि टाइगर फोर्स मुल्क में 10 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम में भी इंतजामिया से ताउन करेगी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा मुआशी हालात इस अमर के मुतकाज़ी हैं कि इस्लाहात के अमल को तेज किया जाए ताकि आवाम पर पड़ने वाले गैर जरूरी बोझ को कम किया जा सके। इस्लामाबाद में आइंदा बजट के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाना, खुसूसन गैर जरूरी हुकूमती अखराजात में कटौती मौजूदा हुकूमत के रोजे अव्वल से तरजीह रही है। उनका कहना था कि इस मकसद को आगे बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो वक्त की अहम जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से हर तबका मुतासिर हुआ है और मईशत को इस्तेहकाम देने और तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासिर हुई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि इन शोबों को खुसूसी तौर पर फरोग दिया जाए जिनसे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सब्सिडी दर हकीकत अवाम के टैक्स का पैसा है, लिहाजा इस पैसे का बेहतरीन और मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मुशीर खजाना की क़यादत में हुकूमती मुआशी टीम ने वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल के बजट के महसूलात, अखराजात और हुकूमत की तरजीहात को अमली जामा पहनाने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर समंदरी उमूर सैयद अली हैदर जैदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची तैयारा हादसे में शहीद होने वालों रजा नकवी, मुसरत यार खान, इफ्रा शाहिद, एरिक सेमन, शहनाज परवीन और जैनुल आरिफ के अहलखानों को टेलीफोन किया और शुहदा के लवाहिकीन से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि इस कौमी सानहे पर पूरी कौम सोगवार है। सदर मुमलिकत ने शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की।
قومی اسمبلی نے قبائلی اضلاع اور پاکستان کے لیے رکن قومی اسمبلی منیر اورکزئی کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ تفصیل بتا رہے ہیں میاں محمد سمی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کی معمول کی کارروائی کو معطل کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے وفات پا جانے والے رکن منیر خان اورکزئی کے لیے تعزیتی اجلاس میں بدل دیا۔ منیر اورکزئی کی خدمات کو سراہتے ہوئے پارلیمانی امور کے مشیر ڈاکٹر بابر اوان نے کہا کہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی روایت لابنگ ہوتی ہے، جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پاکستان کے اوپر ان کا ایمان اور پاکستان کے استحکام کے اوپر ان کا ایمان غیر متزلزل یقین اور غیر متزلزل ایقان والا تھا۔ ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا کہ منیر اورکزئی بہت حلیم، خلیق اور شفیق انسان تھے۔ مجھے افسوس ہوا لاسٹ سیشن میں جب وہ بیماری کی حالت میں یہاں سے نکلے، ڈسپینسری میں نے انہیں جوائن کیا، وہ خود اس حالت میں حوصلہ مجھے دے رہے تھے۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ منیر اورکزئی اس ایوان کے کئی بار رکن رہے۔ بہت اچھا انسان تھا، جتنی بار وہ اسمبلی میں آئے انہوں نے اچھی یادیں اسمبلی میں چھوڑی، خصوصاً جب فاٹا کا انٹیگریشن کا مسئلہ آیا تو اس میں بڑا وہ پیش تھے۔ مولانا عبد اکبر چترالی نے کہا کہ منیر اورکزئی ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو خدمات دی ہیں وہ یاد رکھی جائیں گی۔ منیر اورکزئی صاحب اسلام سے محبت رکھنے والا، پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے، پاکستان کے مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ انہوں نے سابق فاٹا کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ منیر خان اورکزئی ایک سچے پاکستانی تھے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے سوچا اور اپنی کانسٹیچوئنسی کے لیے بھی۔ مولانا اسد الرحمان نے کہا کہ ہمارے لیے آج غم کا دن ہے اور جمعیت علماء اسلام کو منیر خان اورکزئی کی وفات سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم دعا گو ہیں، تعزیت کرتے ہیں ان کے خاندان سے اور اپنے ان تمام پارلیمنٹیرین سے، کیونکہ ان کا یہاں پر تمام پارلیمنٹیرین کے ساتھ، تمام پارٹیوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ محبت کا تھا، بہت نفیس آدمی تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے وفات پا جانے والے ارکان، PIA طیارے حادثے میں جاں بحق ہونے والوں، بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ میاں محمد سمی، PTV نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی کے بارے میں آپ نے جانا، اور اب کچھ بات کرتے ہیں سینٹ اجلاس کی۔ آپ سینٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی ظلم و تشدد کے خلاف مذمتی قرارداد ایوان میں پیش کی، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ وقفہ سوالات میں صنعت و پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے ایوان کو بتایا کہ اسٹیل مل میں گزشتہ 5 سالوں میں تنخواہوں کی مد میں 35 ارب روپے ادا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے نہ اسٹیل مل کو بحال کیا اور نہ ہی اس کی نجکاری کی۔ حکومت اسٹیل مل کی نجکاری میں نجی شعبے کو شامل کر رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں حماد اظہر نے کہا کہ IMF کی پاکستان کے حوالے سے تمام رپورٹیں ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ IMF نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کو سراہا ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے ایوان کو بتایا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے پالیسی 2019 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس پالیسی کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد میں متعدد ٹیکسوں میں چھوٹ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت رزاق داؤد نے ایوان کو بتایا کہ GSP+ کے حوالے سے حکومتی اقدامات کے باعث 2022 تک یورپی یونین نے GSP+ کی شرط کو ختم کر دیا ہے، جس سے پاکستان کی مصنوعات کو یورپی منڈیوں تک رسائی میں مدد ملے گی۔ ملک میں کرونا وائرس، طیارے حادثے اور دیگر حادثات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے ایوان میں فاتحہ خوانی کی گئی۔ سینٹ کا اجلاس 8 جون شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
बات करेंगे वादी जन्नत नज़ीर कश्मीर की। मकबूजा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस अज़्म का इआदा किया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी की हिदायत पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मजलिस शूरा का एक अहम इजलास जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद की सदारत में श्रीनगर में हुआ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी नजरबंदी के बायस इजलास में शरीक न हो सके। इजलास में मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से अपील की गई कि वो भारतीय मज़ालिम से नोटिस लें। इजलास में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अपने चेयरमैन सैयद अली गिलानी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज़ादी कश्मीर के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी की सारी जिंदगी जिद्दोजहद करने वाले कश्मीरी अवाम और उनकी आज़ादी पसंद क़यादत के लिए मशाल राह है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मजबूत बुनियादों पर कायम है, लिहाजा नाकामी उन अनासर का मुकद्दर है जो अपने ज़ाती मफादात के लिए सैयद अली गिलानी की अदालत का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इजलास में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के इजलास में किए गए फैसलों की मुकम्मल हिमायत और मोहम्मद हुसैन खतीब के कायम मकाम कन्वीनर मुंतखब होने की तौसीक की गई। जारहियत के शिकार बच्चों के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की एक रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया है कि 1 जनवरी 1989 से रवा साल 4 जून तक शहीद होने वाले कश्मीरियों में 897 कश्मीरी बच्चे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर यूथ सोशल फोरम के रहनुमा जुबैर हुसैन मीर ने इस्लामाबाद में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में जनूबी कश्मीर में मुहावजे और तलाशी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों और बड़ी तादाद में नौजवानों की गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उबूरी कन्वीनर मुस्तफ़ा मोहम्मद हुसैन की क़यादत में नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मकबूजा कश्मीर में हालिया दिनों में कश्मीरी नौजवानों के मामराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि भारत कोरोना की आड़ में न सिर्फ नौजवानों को शहीद कर रहा है बल्कि कश्मीर की जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील करने पर तुला हुआ है। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारत की तरफ से सहाफ़ियों पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मजम्मत की। और अब कुछ बात कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,896 केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 68 अफराद जाम हक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 89,249 हो गई है, जबकि इस वायरस से जाम हक होने वालों की तादाद 1,838 है। 31,198 अफराद सेहतियाब हुए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 3,946, पंजाब में 33,144, सिंध में 33,536, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890, बलूचिस्तान में 5,582, गिलगित बल्तिस्तान 852 और आज़ाद कश्मीर में 289 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। एशियाई तरक्याती बैंक कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को $50 लाख की हंगामी इमदाद के अलावा $3 करोड़ फराहम करेगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। मुआहिदों के तहत मिलने वाली रकम इंसदादे कोरोना के लिए सेहत की खिदमात में बेहतरी, मेडिकल सप्लाईज, हिफाजती आलात और एहसास प्रोग्राम के जरिए नकद रकम की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल होगी। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कोरोना के अदम फैलाव, आगाही और वेंटिलेटर्स की अस्पतालों में दस्तियाबी के हवाले से पाक निगहबान ऐप लॉन्च कर दी। मुल्क भर में 1110 अस्पतालों को पाक निगहबान ऐप से मुंसलिक कर दिया गया है। ऐप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जिंदगियां बचाने में इंतहाई मुआविन साबित हो सकती है और कोई भी शहरी नजदीकी अस्पताल में वेंटिलेटर्स और बिस्तरों की दस्तियाबी से मुतालिक आगाही हासिल कर सकता है। नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया है। RMS सिस्टम के जरिए मुल्क भर में 15,449 अस्पतालों को मुंसलिक किया गया है। सिस्टम के जरिए सूबे अपने अस्पतालों के अंदर मौजूद सहूलतों का जायजा ले सकते हैं। उधर इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें इजलास को ये बताया गया कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की खुसूसी टीम कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान की सरबराही में कराची पहुंच गई है।
خصوصی ٹیم میں ماہرین صحت سمیت انتظامی عملہ بھی شامل ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ فورم صوبوں میں SOPs پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لے رہا ہے۔ پنجاب میں مختلف مارکیٹوں، بازاروں، ٹرانسپورٹ اور صنعتی علاقوں کی جانچ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 100 سے زائد مارکیٹیں، 11 صنعتیں اور 232 گاڑیاں بند کی گئیں۔ سندھ میں مؤثر میڈیا مہم کے باعث SOPs پر عمل درآمد سے متعلق عوامی شعور اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے۔ خیبر پختونخوا میں عوامی آگاہی مہم نو ماسک نو سروس شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے تحت آبادی میں ماسک بانٹنے کے علاوہ مختلف دفاتر میں کام کرنے والوں کے لیے ماسک کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں SOPs پر عمل نہ کرنے پر 473 دکانیں اور 6 مارکیٹیں سیل کرنے کے ساتھ 300 سے زائد گاڑیوں کو بھی جرمانے کیے گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی نو ماسک نو سروس مہم پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے پر اب تک 8 علاقوں سمیت 440 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سندھ میں عوام سے ماسک اور گلوز پہننے کی پرزور اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ آج صوبے میں کورونا کے سب سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کورونا کے مریضوں کے لیے اپنا پلازما بھی عطیہ کیا۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان احمد۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کورونا وائرس کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں آج 1353 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7377 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جو اب تک سب سے زیادہ ٹیسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے مرض میں مبتلا 1000 افراد صحتیاب ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے آج کراچی میں کورونا کے مریضوں کے لیے اپنا پلازما عطیہ کیا۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کے سربراہ طاہر شمسی نے اس عمل کی نگرانی کی۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جتنی جانوں کو بچا سکیں وہ بچائیں۔ جو اینٹی باڈیز ایک کورونا پیشنٹ ریکوری کے بعد اس کی باڈی میں ڈیولپ ہوتی ہیں، 4 دفعہ آپ پلازما ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر طاہر شمسی کا کہنا تھا کہ پلازما لگائے جانے والے کورونا کے 80% مریض وینٹیلیٹر پر جانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ادھر خیبر پختونخوا میں کورونا سے متاثرہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ہسپتالوں میں سہولیات اور دیگر معاملات کی تفصیل بتا رہے ہیں مدثر خان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عالمی وبا سے متاثر ہونے والے افراد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں صوبے کے ہسپتالوں کو دستیاب وسائل کے مطابق سہولیات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے کہا کہ صوبے میں وینٹیلیٹرز کی کوئی کمی نہیں۔ ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے تقریباً 5500 بیڈز اور 500 سے زیادہ وینٹیلیٹرز مختص ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت خیبر پختونخوا میں الحمدللہ بیڈز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی کمی نہیں ہے۔ مشیر اطلاعات نے صوبے میں پنجاب سے گندم کی ترسیل پر پابندی سے متعلق کہا کہ آٹے اور گندم کا مسئلہ قومی رابطہ کمیٹی میں اٹھایا گیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے مسئلے کے حل کی بھرپور یقین دہانی کرائی ہے۔ صوبے میں پیٹرول کی قلت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے پیٹرول مافیا کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے، جس کے مطابق صوبہ بھر کے تمام اضلاع میں انتظامیہ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ مشیر اطلاعات اجمل وزیر کے ہمراہ پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم چکڑا نے کہا کہ پچھلے 3 مہینوں میں کورونا وائرس کے باعث ریونیو میں 100 ارب روپے کا فرق آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ صوبے کی تاریخ میں منفرد بجٹ ہوگا، جس میں نہ صرف صحت کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے جائیں گے بلکہ اگلے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے خصوصی رقم مختص کی جائے گی۔ مدثر خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ بلوچستان میں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد پلازما عطیہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کوئٹہ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پلازما عطیہ کرنے والے افراد کے شکر گزار ہیں۔ کورونا سے بچنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا صورتحال کا باغور جائزہ لے رہے ہیں، صورتحال دیکھ کر پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فیصلہ کریں گے اور کورونا وائرس کو شکست دینے کا مؤثر ترین طریقہ احتیاط ہے۔ بلوچستان میں اس موذی مرض کو شکست دے کر زندگی کی جانب لوٹنے والے افراد کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، یہ جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 4,500 سے زائد افراد میں کورونا کی تشخیص کے بعد پاکستان میں کورونا پازیٹیو ایکٹیو کیسز کی تعداد
56,213 हो गई है। तर्जुमान हेल्थ डायरेक्टोरेट बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे भर में अब तक मजमूई तौर पर 5,582 से जायद कोरोना मस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि 53 अफराद इस मौलिक वायरस के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे भर में मुश्तबा मरीजों की तादाद 25,802 है। ताहम 2,037 अफराद ने बुलंद हौसले, आने अज़्म, एहतियात और हुकूमती हदायत पर मनमान अमल करके न सिर्फ इस जानलेवा वायरस को शिकस्त दी, बल्कि अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां भी महफूज बनाई। मेरे शौहर जो हैं वो भी मीडिया से ही वाबस्ता हैं। पहले उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ, साथ साथ हमारे घर में मुझे भी सिम्टम्स थे। हम सब अपने घर में ही आइसोलेट हो गए। अपने साथ साथ हमने वही एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर्स ने उस पर हमने अमल दरामद किया। मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो खुदा एहतियात करे और मास्क पहने। कोरोना वायरस के खिलाफ अरावल दस्ते में शामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की फर्शनासी और लगन मिसाली है। अवामी खिदमत के दौरान वायरस से मुतासिर होने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए अवाम इस मौलिक वायरस को संजीदा लें। लोग इनको लाइट ले रहे, गलत ले रहे, मुझ पे गुजरा है। वाइड बलूचिस्तान ने यह फैसला किया है यंग डॉक्टर्स अपने वार्डों में अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने के साथ साथ वॉलंटियरली कोरोना के ICU वार्ड में एक्स्ट्रा ड्यूटीज देने के लिए तैयार हैं। सूबे भर में कोरोना के फैलाव को कम से कम रखने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जारी हुकूमती इक़दामात को कामयाब बनाने के लिए यंग डॉक्टर्स का फैसला वक्त की जरूरत और यकीनन काबिल इस्ताइश है। कासिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 68 लाख के करीब पहुंच गई है। 3,95,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 33 लाख अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। अमरीका में 19,26,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, जबकि 1,11,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 34,000 से तजावुज कर गई है। 6,15,000 लोग इस वायरस से मुतासर हैं। रूस में 4,50,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उधर बरतानिया ने 15 जून से बसों, ट्रेनों और जहाज़ों पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ग्रांड शॉप्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि छोटे बच्चे और माजूर अफराद इस हुक्म से मुस्तस्ना होंगे। जो अफराद मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें सफर करने से रोक दिया जाएगा और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अमरीकी पुलिस एहलकार के हाथों कत्ल होने वाले सियाह फाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात मिनापोलिस शहर में अदा कर दी गई हैं, जिनमें जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान के अफराद और सियासतदानों समेत सैकड़ों अफराद ने हलाक होने वाले शहरी को खिराज अकीदत पेश किया। कई शहरों में 9वें रोज भी लोग कर्फ्यू को नजरअंदाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और सियाफाम शहरी की हलाकत पर शदीद एहतजाज किया। न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन ब्रिज पर हजारों अफराद सियाफाम शहरी की हलाकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आए और सियाफाम शहरियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे का मुतालबा किया। और सियाफाम शहरी की हलाकत के बाद ये एहतजाज सिर्फ अमरीका में नहीं थमा, बल्कि बरतानिया में भी अमरीका में हलाक होने वाले सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। बर्मिंघम में पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने सैकड़ों अफराद ने मुजाहिरा किया। लबनान में अमरीकी यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के सामने भी जॉर्ज फ्लॉयड के खानदान से इजहार हमदर्दी के लिए दर्जनों अफराद जमा हुए। मुजाहिरीन ने हाथों में मोमबत्तियां और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। और अब कुछ तस्करा करेंगे टिड्डी दल का। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले पर काबू पाने के लिए हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से फिजाई स्प्रे किया जा रहा है। नेशनल लुकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टिड्डी दल से मुल्क भर के 47 अजला मुतासर हुए हैं। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब के 3 और सिंध के 2 अजला इससे मुतासर हैं। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वजीर सैयद फ़खर इमाम ने कहा है कि टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए वाफिर मिक़दार में केमिकल दरामद कर लिया गया है। बलोचिस्तान और पंजाब के अजला में टिड्डी दल में कमी आई है। रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वफाकी वज़ीर ने कहा कि टिड्डी दल से नुकसान उठाने वाले किसानों की मुश्किलात से आगाह हैं।
चाइना ने हमें $4.9 मिलियन मुख्तस कर दिए थे एज अ ग्रांट, जिसमें से तकरीबन 3 लाख लीटर्स ऑफ मैराथन आ चुका है। 50,000 लीटर्स ऑफ लैम्डा चाइनीज ने हमें दिया। उन्होंने कुछ हमें स्प्रेज भी दिए हैं, कुछ उन्होंने हमें मास्क भी दिए हैं जो लोग इस काम में कर रहे हैं, बतौर ग्रांट डोनेट की हैं। वो ये भी कहते थे कि हम आपको कुछ ड्रोन्स भी देना चाहेंगे, इनिशियली 50, और वो ये समझते थे कि जो क्रॉप्ड एरिया है वहाँ वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना और टिड्डी दल के तदारुक और जनूबी पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए बहावलपुर और रुझान मजारी का दौरा किया। उन्होंने रहीम यार खान और सादिकाबाद समेत दीगर इलाकों का फजाई मुआयना भी किया। मजीद बताएंगे ताहिर महर अपनी रिपोर्ट में। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्किट हाउस बहावलपुर में अरकान पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ के अहदेदारों से मुलाकात की। मुलाकात में कोरोना वबा, टिड्डी दल और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब की आवाम के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट के क़याम का वादा पूरा किया है, जबकि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तकर्री की मंजूरी भी दे दी गई है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार रुझान मजारी मेरी बंगला गए, जहाँ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मेरी बंगले में दीवान खास का दौरा किया और 140 साल पुरानी इमारत के कदीम तर्ज तमीर में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने रहीम यार खान, रुझान, बोंग, सादकाबाद, कोट सफजल समेत मुख्तलिफ इलाकों का फजाई दौरा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने फजाई मुआयने में कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा ली। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज। खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा ज़राअत, PTMA, पाक आर्मी और जिले इंतजामिया पर मुश्तमिल टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर ज़ेब मरवर। खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल के बड़े झुंड अफगानिस्तान से सूबे के 13 अजला, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, देई खान, टांग, लकी मरवत, बनू, करक, कोहाट, अंगूर और अगजई, कोरम, खैबर और पेशावर में दाखिल हुए, जिन्होंने इन अजला में खड़ी फसलों को मुतासर किया। महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा के अहलकारों पर मुश्तमिल 80 टीमें, 78 गाड़ियाँ और ड्रोन समेत मुख्तलिफ किस्म की स्प्रे मशीनें इन अजला में टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम में हिस्सा ले रही है। 34 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे की सर्विलेंस और 42,000 हेक्टेयर इलाके कंट्रोल ऑपरेशन के बाद टिड्डी दल के खात्मे के लिए अब तक 42,000 हेक्टेयर से ज्यादा मुतासर रकबे पर 22,000 लीटर से ज्यादा जहरों का स्प्रे किया जा चुका है। ये ऑपरेशन तो हमने सबसे पहले 16 फरवरी 2020 से स्टार्ट किया था, जो कि मैच्योर लोकस्ट पर स्टार्ट किया था। जहाँ पर भी निकल आते हैं और बच्चे निकल आते हैं और हमें सर्वेलांस रिपोर्ट मिलती है तो हम उसी जगह पर जाते हैं। टिड्डी दल की एरेडिकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले हमने बलूचिस्तान में काम किया है, सिंध में और पंजाब में, और अभी मैं यहाँ पे डिप्यूट हुआ हूँ। महकमा ज़राअत, PTMA और पाक फौज के बरवक्त इकदाम से खैबर पख्तूनख्वा में टिड्डी दल से फसलों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। तमाम देई खान में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार डेर इस्माइल खान में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ड्रोन के जरिए भी स्प्रे किया जा रहा है। महकमा ज़राअत ने किसानों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन के साथ मोबाइल ऐप भी मुतारिफ कराई है। जो टिड्डी दल के ऑपरेशन जारी है, इसके बारे में महकमा ज़राअत ने हमारे जमीनों पर बहुत ज्यादा स्प्रे किया है। टिड्डी दल के खतरे के पेश नजर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतासरा अजला में सर्विलेंस और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। सूबे में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है और सूरत हाल की निगरानी की जा रही है ताकि टिड्डी दल से फसलों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अनवर ज़ेब मरवत, PTV न्यूज, लकी मरवत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने माहौल को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम सरसब्जो शादाब पाकिस्तान की जानिब एक अहम कदम है। मलिक उमर की रिपोर्ट। दुनिया रवां साल कई तरह के माहौलियाती बहरानों का शिकार है। कहीं मंतका हारा के बारानी जंगल आग के शोलों से दहक रहे हैं तो कहीं तूफान गर्दोबारा और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा रखी है। कोरोना वायरस की वबा और अफ्रीका और जनूबी एशिया में टिड्डी दल के हमले हमें मुतनब्बे कर रहे हैं कि अगर हमने आलमी माहौल की जानिब तवज्जो न दी तो हालात इससे भी दिगरगुन हो सकते हैं। इस हसास मसले की जानिब दुनिया की तवज्जो दिलाने और इस बारे में शऊर और आगही को फरोग देने के लिए आज आलमी यौम माहौल
منایا جا رہا ہے۔ رواں سال یہ دن حیاتیاتی تنوع کے تناظر میں منایا جا رہا ہے۔ ماہرین کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 10 لاکھ انواع معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماحولی نظام اور حیاتیاتی تنوع کی بقا کی طرف فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسانی زندگی کا دار و مدار تمام تر ترقی کے باوجود آج بھی ماحول پر ہے۔ ہمیں جینے کے لیے درکار پانی، خوراک اور ہوا وغیرہ سبھی کچھ فطرت فراہم کرتی ہے۔ اس کے خلاف ہمارا معاندانہ رویہ دراصل اپنے ہی خلاف جنگ کے مترادف۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسان جس تیزی سے زمین کے وسائل کو کام میں لا رہا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 1.6 زمینیں درکار ہیں۔ اگر اسی رفتار سے ہم زمین کے وسائل کا بے دریغ استعمال کرتے رہے تو مستقبل قریب میں صورتحال اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے گی۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ خطہ ارض پہ موجود حیات ایک پیچیدہ نظام میں منسلک ہے۔ اس کے تنوع کو برقرار رکھنے ہی میں ہم سب کی بقا ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشیر ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم اور وزیر مملوکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل نے کہا ہے کہ قدرتی ماحول کے تحفظ اور فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ہمیں شجرکاری پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ دنیا جب اس کووڈ سے ایسا باہر آ رہی ہے تو ایک گرین ریکوری کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور ہماری حکومت نے اس چیز کا تہیہ بھی کیا اور عملی طور پہ بھی کر کے دکھایا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس گرین ریکوری میں بلیو کرتے ہیں۔ یہ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے یہ اناؤنس کیا کہ ہمیں گرین اسٹیمولس دے رہے ہیں اور ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جس سے نہ صرف بے روزگار لوگوں کو نوکریاں ملیں بلکہ ہم اپنے ماحول کا بھی تحفظ کر سکیں۔ اٹس ٹائم فار نیچر، لیٹس ریوائیو کہ ہم دوبارہ سے پلانٹیشن کی طرف جائیں۔ بلین ٹری سونامی بہت خوبصورت پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے۔ کلین گرین پاکستان بہت خوبصورت پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے۔ اسلام آباد میں اور ایون پاکستان کے اندر آپ لوگ شاپنگ بیگ کا جو استعمال ہے اس کو بالکل آپ لوگ ختم کر دیں۔ ہم نے اپنی بیہیویئر چینج ہم نے لے کر آنا ہے کہ ہم نے نیچر سے، درختوں سے، اپنے نیچرل ریسورسز سے محبت کرنی ہے۔ وہ بیسکلی پاکستان سے محبت کا ثبوت ہے۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر پاک بحریہ کی جانب سے معلوماتی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ ویڈیو میں ماحول کے تحفظ میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر عملی کاوشوں کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر نیول چیف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاک بحریہ ملکی آبی سرحدوں کے علاوہ حیاتیاتی اور آبی ماحول کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں کیا انسان میں مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں، اور کیا کرونا وائرس اور اس کا پھیلاؤ بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں دیں گے شاہد اجمل ملک ماحولیات کے عالمی دن کے حوالے سے بنائی گئی اس خصوصی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس اب ایک حقیقت ہے۔ سائنس کی ترقی اور جدت کے اس زمانے میں کرونا وائرس کا اس قدر زیادہ پھیلاؤ انسان کے لیے ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال بار بار جنم لیتا ہے کہ کیا موسمیاتی تبدیلی بھی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب ہو سکتی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف پبلک ہیلتھ نے اس حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ ریسرچ میں سوال اٹھایا گیا کہ کیا ماحولیاتی تبدیلی کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جواب ہے کہ اب تک انسان کے پاس اس حوالے سے کوئی واضح اور براہ راست ثبوت تو نہیں ہے، لیکن یہ امر ثابت ہے کہ زمین پر ہمارے دوسرے جانداروں کے ساتھ سلوک کی وجہ سے ماحولیات پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے ہی زمین پر درجہ حرارت میں اضافہ ہوا، بڑے اور چھوٹے سب جانور گرمی سے بچنے کے لیے نقل مکانی کرتے ہیں اور دوسرے مقامات پر اپنے ساتھ کئی بیماریاں بھی منتقل کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا فضائی آلودگی کرونا وائرس کا باعث ہے؟ جواب بڑا اہم ہے۔ جو افراد ایسے علاقوں میں رہائش پذیر ہیں جہاں فضائی آلودگی زیادہ ہے، ان میں کرونا وائرس کی وجہ سے موت کی شرح زیادہ ہوگی۔ ماحولیاتی تبدیلی پہلے ہی بہت سی انفیکشس بیماریوں کا باعث ہے۔ انسان کی ترقی اور ایک ہی دن میں دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچنے کی صلاحیت بھی وائرل بیماریوں کے پھیلاؤ میں بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ قدرتی طور پر ہم جانور اور پودوں کے ساتھ ہی یہ دنیا مکمل کرتے ہیں، لیکن جب سے ہم نے اس شراکت داری کو ختم کیا، قدرت نے بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وائرس کی بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور ماحولیاتی خرابی کی رفتار کچھ دھیمی ہوتی ہے، لیکن بڑا خطرہ ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ ہم سب یہ سوچیں ہیں کہ اس زمین اور ماحول کو بھی بہتر رکھنے کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے۔ ہم اس کو بہتر رکھیں تاکہ نیچر بھی ہمارے ساتھ ہو۔ شاہد اجمل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر سمندری امور سید علی حیدر زیدی کی صدارت میں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔
یہ ब्लू इकोनॉमी से मुतालिक मुशावरती अमल का चौथा इजलास था। मुशावरती अमल के तहत समुद्री उमूर के मुताबिक कामों को मुस्तहकम किया जा रहा है और रूल्स ऑफ बिजनेस में पाए जाने वाले खला को दूर करने के लिए सिफारिशात भी दी जाएंगी। अली हैदर जैदी ने कहा कि वजारत समुद्री उमूर में पाकिस्तान को कर्जे में फंसे हुए मुल्क से खुशहाल और कर्ज से आज़ाद मुल्क में तब्दील करने की सलाहियत है। उधर वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गुल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर 22 लाख शिकायत मौसूल हुई हैं। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग से खिताब में शहबाज गिल ने कहा कि पोर्टल पर शिकायत मौसूल होने के बाद मुतालिका शोबे को मुतनब्बे किया जाता है कि 3 हफ्ते में शिकायत का अजाला करें। शहबाज गिल ने कहा कि शहबाज शरीफ लोगों की ज़ातियात पर बयानात देने के बजाय अपनी करप्शन का हिसाब दें। सदाकत अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के बेशतर सरकर्दा रहनुमाओं पर करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी टीम और पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के अरकान का वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर सनअत व पैदावार हम्माद असर, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, चेयरपर्सन FPR और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के अरकान ने इजलास को कोरोना वायरस की वजह से टेक्सटाइल की सनत पर पड़ने वाले मनफी असरात से आगाह किया और आइंदा माली साल के बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। मुशीर खजाना ने यकीन दहानी करवाई कि बजट को हतमी शक्ल देते हुए उनकी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स की जानिब से नाजायज मुनाफाखोरी के लिए पेट्रोल और डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने के खिलाफ ओगरा, SECP और सूबाई हुकूमतों से मिलकर सख्त इक़दाम का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी लिस्टें बनाकर अवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा और लाइसेंस भी कैंसिल होंगे। अवाम उजरत में खरीदारी न करें। उधर कराची में निजी कंपनीज की जानिब से पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल है, जिसके बायस पेट्रोल का बहरान और मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। पेट्रोल की कमी के बावजूद अवाम शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार है। ज़िशान अहमद रिपोर्ट करता है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम को पेट्रोल नए नरखों पर मिल तो रहा है, ताहम पेट्रोल माफिया ने शहर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। हुकूमत की जानिब से ओगरा को इस माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और पेट्रोल की मसनूई किल्लत को खत्म करने के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। पेट्रोल की मसनूई किल्लत से अवाम परेशान है और पेट्रोल माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ये जब से पेट्रोल सस्ता हुआ है, जब से यही लगा हुआ है, पेट्रोल कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तकरीबन पंप मुझे बंद मिले, मैं यहाँ आके रुका तो ये पंप भी बंद पड़ा हुआ है। मेरा यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे भी नहीं मिला। बाइक को हम पकड़ के लेके जा रहे हैं घर। कल से घूम रहा हूँ, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी। जहाँ जहाँ पेट्रोल खुले वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। पेट्रोल की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं। पेट्रोलियम तर्जुमान के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल की वाफिर मिकदार मौजूद है, जबकि पेट्रोलियम डिविजनल ऑयल रिफाइनरी को अपनी पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर चुका है और PSO के जरिए मसनूई किल्लत को खत्म करने के लिए पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। हमारे पास जो PSO पे रश लग रहा है वो इस वजह से कि दूसरे पंप बंद है। पेट्रोल की मसनूई किल्लत के खात्मे के लिए हुकूमत सख्त नोटिस ले रही है, ताहम शहरियों को मजीद परेशानी से बचाने के लिए PSO के तमाम पंप्स पर पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अभी आपको आगाह करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स में 231 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। रवां कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। ताहम कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन 100 इंडेक्स 34,367 की सतह पर पहुंचकर 34,350 पर बंद हुआ। इंडेक्स में 231 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ते चला जा रहा है हुकूमती पॉलिसीज पे। आगे आने वाले दिनों में जब भी आप स्टॉक मार्केट को ऊपर देखेंगे, उसकी वजह दो ही होती है, एक हुकूमत की पॉलिसीज और दूसरी आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ये फ्रेंडली बजट रहा और इकोनॉमिकल बजट रहा तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को फिर से एक बार तेजी की तरफ जाते हुए देखेंगे। बाजार हसीस में 292 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें 166 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 102 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 24 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 48,000 शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 39 अरब 62 करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा थी, जबकि कारोबारी हजम 8 करोड़ 91 लाख 34 हजार रुपए से ज्यादा रहा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।
खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि रिश्ते इकनॉमिक जोन मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के लिए इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। वो पेशावर में इजलास की सदारत कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि रश्कई इकनॉमिक जोन सूबाई हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसकी तकमील से सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पंजाब असम्बली के इजलास में PIA तैयारा हादसा और कोरोना वायरस की वजह से जाम बहक होने वालों के लिए ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने पेश की, जिसमें जाम बहक होने वालों की मग़फ़िरत और लवाहिक़ीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा कि कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए हमें एहतियात करना होगी। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए अरकान असम्बली का कहना था कि आवाम को कोरोना से बचाने के लिए इक़दाम करने की जरूरत है और SOPs पर अमल दरामद करवाना भी बेहद जरूरी है। ऐवान से खिताब करते हुए GDA हसनैन मिर्जा ने कहा कि पीपल्स पार्टी खुद को जमहूरियत का अलम बरदार समझती है। खबर देंगे आपको ठट्ठा से, जहां पर झरक के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे डूबकर जाम बहक हो गए। ये बच्चे गर्मी के बायस दरियाए सिंध में नहा रहे थे। बच्चों की लाशें मुकामी अफराद ने निकाल ली हैं। बच्चों में 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, सिंधी जुबान के मशहूर दानिश्वर, अदीब और शायर ताज बलोच मुख्तलिफ अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उनको कराची में मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया। उनकी उम्र 78 साल थी। ताज बलोच ने शाह अब्दुल लतीफ भटाई के फिक्र और फलसफे पर किताब लिखी, जो काफी मकबूल हुई। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम खित्ता पोठोहाट समेत पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान सिंध के अजला में भी बाज़ मकामात पर गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। अस्सलाम वालेकुम। खेलों खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, खेलों में सबसे पहले जिक्र करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन 2020-21 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। कुछ मजीद खबरें में आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कोरोना लॉकडाउन में नरमी जिंदगी के तसलसल के लिए है। गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बन सकती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बसूरत दीगर दुकान बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, बाजार बंद और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले आम शहरियों को जुर्माने और कैद की सजा दी जाएगी। अवाम उन्नास के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मुंह और नाक को ढांपना लाजमी करार। हुकूमत पंजाब। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कोरोना लॉकडाउन में नरमी जिंदगी के तसलसल के लिए है। गैर जिम्मेदारी मौत का सबब बन सकती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बसूरत दीगर दुकान बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, बाजार बंद और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले आम शहरियों को जुर्माने और कैद की सजा दी जाएगी। अवाम उन्नास के लिए घर से बाहर निकलते वक्त मुंह और नाक को ढांपना लाजमी करार। हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। आपको बताएं, 1 जुलाई से ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नाफिजुल अमल होगा। इसमें अनम अमीन और उमामा सुहेल समेत 9 खवातीन क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल तमाम कैटेगरीज के मुआवजों में इजाफा कर दिया है। नौजवान क्रिकेटर्स को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए एक नई एमर्जिंग कैटेगरी भी मुतारिफ करवाई गई है। PCB ने डोमेस्टिक इवेंट्स के मुआवजों में भी इजाफे का ऐलान कर दिया। चीफ सिलेक्टर कौमी खवातीन क्रिकेट उरूज मुमताज का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान से कबल सिलेक्शन कमेटी ने एक तवील मुशावरत की, जहां गुज़श्ता 12 माह के दौरान कौमी
खवातीन खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन क्रिकेट के हेड कोच के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं दी, जबकि बिस्वा मारूफ कौमी वुमेन टीम की कप्तान बरकरार रहेंगी। पीसीबी ने बिस्वा मारूफ को सीजन 2020-21 के लिए कप्तान बरकरार रखने का ऐलान किया है, जबकि हेड कोच इकबाल इमाम को हटाने का ऐलान किया है और कहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की जाएगी। हेड कोच की तकर्री के लिए इश्तिहार मुकर्रर वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर बतौर आजाद मुंसफ 11 जून को उमर अकमल की जानिब से अपील दायर पर समाअत करेंगे। इस हवाले से दोनों फरीकैन पीसीबी और उमर अकमल को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 27 अप्रैल को रिटायर्ड जस्टिस फजले मीरा चौहान ने बतौर चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल 2 मुख्तलिफ मौके पर पीसीबी के एंटी करप्शन कोड की शिक 244 की खिलाफ वर्जी करने पर उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी। खेलों से इतना ही, अब आपको ले चलते हैं मेन डेस्क पर। बहुत शुक्रिया अनीस, और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने अख्ताम को। अयाज असलम और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता-ए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। टोर गया मुंशी अल्लाह पे गया बिछोड़ा, ओ लगी कैंची गमानी, ओ लगी कैंची गमानी। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं फलड्डा पलानी रहना तो इतों तकरीबन 15 किलोमीटर नकियाल सैकटर है, नकियाल तहसील नकियाल जिला कोटली। बच्चा माड़ा छोटा बकरियां नाल उपर गया सी ते गोलाबारी शुरू हुई तो उन्होंने घर ने आखे चलो इतना सेफ्टी है तो अंदर आई जो गोलाबारी बंद हो तो वापस गया। फिर बच्चे ने मतलब टाइम पूरा हो गया तो गोला पिया तो बच्चा माड़ा शहीद हुआ अस्पताल। निके निके जावा ना पाले, गरीबी लात सी पहले पढ़ाई पर कोई नहीं छोड़िया, अपना कोठा नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, बच्चे पढ़ाए छोटा से आ लाडला से सारे भैन भरा रोज सुबह जरा मिलना से आ पैसे दियो, ये चीज दियो, जासो फिर पता है छोटे बच्चे नहीं कितनी आ रही होंगे जिन्हें जिन्हें स्कूलों जाना रहा, फर्स्ट स्टेशन रहा, उतो 9वीं दाइशन रहा, जिस स्कूल जाना रहा सीटे चुभी कराउन पड़ी ऐसे जून साल फारूक हो जाए। हाँ वर्दी हाल ही 2 दिन लगी गुजार गई तो अम्मी अजे अगे भी ऐसी अम्मी मारा ते वर्दी हो जा अपनी हर चीज संभाली रखी नहीं, चक्कू आपने रखे ने अंदर, अम्मी जरूरत पे नहीं। उस जगह शहीद ने वाले ना एक पूरा बरका उसूल लिखा कि शहीद कभी भी नहीं मरना, शहीद जिंदा रहना, कफन की लोड़ नहीं उसी होनी, गुस्ल की लोड़ नहीं होनी, आंख खोले तो चेहरा मेरी मौन हो गए, कफन न मिला तो दुपट्टा अपनी मौन हो गए। पूरा नहीं उस घटा लिखी तर अंदर, असें क्या पता उसने केड़िया गल्लां। सिर्फ इतना करना है, घरों में रहना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। सिर्फ इतना करना है, हो मेल जोल तो 1 मीटर तक का फासला रखना है। अलामात की सूरत में मुफ्त हेल्पलाइन 1700 पर राब्ता करना है। आपकी खैर ख्वाह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा।
धरती में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।